أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی وعلیکم آیات السلام۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر، آیات 47 اور 48 کو کور کریں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم QC2 سے کرتے آئے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا صفحہ 6 مکمل ہو جائے گا، اشارہ ڈی پڑھیں گے ہم، اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کا فہم سیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور انشاءاللہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کی بھی نیت کر لینی ہے۔ تو ایک آپ نیت بھی کر لیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ بھی ٹیچر بنیں گے اور سکھانے کا عمل جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کورس کیسے آگے جا رہا ہے۔ اچھا جی، کوئز وغیرہ کی باتیں ہم چھوڑتے ہیں، وہ ہم گروپ میں کافی پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے۔ سورہ فاتحہ ہم نے کی 12 عادات سیکھی، ان چیزوں کو ہم نے اب ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ہم جو عادات سیکھ کے آئے ہیں ان کو ہم نے یاد بھی رکھنا، اور الفاظ جو ہم نے دیکھا تھا سورہ فاتحہ میں بہت سے ایسے الفاظ ہم نے سیکھے جو آگے قرآن مجید میں بار بار صدور میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورہ البقرہ شروع کی، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے متقین کی بات کی، پھر ہم نے کافرین منافقین کے بارے میں پڑھا، قرآن کی دعوت چیلنج سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا کہ پہلے انسان جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ صفحہ نمبر 6 پر بھی یہ بات شروع ہوئی تھی، اور شروع کے 2 اشاروں میں یہ بات چلتی رہی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ دیکھیے ہدایت پہلے جو انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کو ملی، اس کی جو ایک قوم، ایک جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بے پناہ بے شمار انعام و اکرام سے نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے، طرح طرح کی جیسے ہر بات میں نافرمانی، اور اس طرح سے کہ ہر بات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے پروف بھی مانگتے تھے چیزوں کا۔ یہ غرض یہ کہ انہوں نے ہر طرح سے نافرمانی کرتے ہوئے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ یہ سارے ٹاپک انشاءاللہ ہم نے سورہ بقرہ میں کور بھی کر لینے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے دیکھیے گا کہ ان سارے جتنی بھی ہمیں یہ آیات نظر آ رہی ہیں اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لیسن میں سے اپنے لیے پلان بھی نکالیں گے، ہم اپنا احتساب بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہمارے بائیں ہاتھ کے اشارے ہیں، ہمارا جو چھٹی انگلی کا اشارہ، یعنی کہ 5 ہم نے کر لیے ہیں، 5 پیجز ہو گئے، جو ہمارا چھٹا صفحہ ہے۔ آج ہمارا یہ آخری اشارہ ہے، ABCD۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدن کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہاں پر بتایا گیا کہ جو برے کام کرے گا اس کا نتیجہ پھر کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے گا، ان کے لیے جنت ہے، ہمیشگی والی جنت۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، یہاں سے بنی اسرائیل کی دعوت کی بات کی گئی۔ اس کے بعد نیک کام کرو میں ہم نے دیکھا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ نیک کام کرنے میں بالبری کو، بر نیکی کو کہتے ہیں، اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اشارہ ہے، اس دن سے ڈرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اب یہ چونکہ اسی طرح سے شروع ہو رہا ہے جیسے ہمارا ایک پہلے اشارہ شروع ہوا ہے دوسرا،
अब इसमें हम ढूंढेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें और कैसे एक अलग इसका हम हाईलाइट कर सके कोई लफ्ज या इसमें से कोई आयत का टुकड़ा, इसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। उंगलियों पे इसको बार बार आप पढ़ पढ़ कर याद किया करें ताकि ये अच्छी तरह से आपको जहन नशीन हो जाए। ये जरूरी कोर्स के लिए है। वो क्यों जरूरी? क्योंकि हम रिलेट करते हैं तो हमें अगली से अगली आयत के माना और इनके बारे में जो मुख्तसर सी शरह बयान की वो चीजें समझ में आ जाती हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यहाँ पर ये इशारे का ये नाम लिखा तो ये यही ही इसका नतीजा निकल रहा है। ये सिर्फ पहचान के लिए बनाए गए हैं ताकि हम इन चीजों को इस तरह से याद कर सके, याद रख सके। पिछली आयत से क्या ताल्लुक था? इससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस बात की दावत दी थी कि वो कुरान मजीद को और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर ले। यहाँ अल्लाह ताला उन्हीं बातों की याद दहानी करवा रहा है। उस दिन से डरो। हम ऐसा करते हैं कि आज फिर कल की तरह से पूरी जो आयत मुबारक दोनों इनकी इकट्ठी तिलावत कर लेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह लफ्ज ब लफ्ज देखेंगे। अभी हम देखते हैं असबाक। सबसे पहले कहा गया है अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो। जब हम अल्लाह ताला के इनामात को याद रखेंगे उससे क्या होगा? दिल में अल्लाह ताला का शुक्र और शुक्र का जज्बा इस तरह से पैदा होगा कि दिल से जब हम तारीफ करेंगे तो हमारी इबादत बेहतर होंगी। आखिरत के दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम न आएगा, ना ही किसी की शफात कबूल की जाएगी, ना कोई फिदिया बदला लिया जाएगा और ना ही जालिमों की मदद की जाएगी। हमने पढ़ा था सूरह फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन, यानी कि हमने जो भी काम करना है हमने आखिरत को जहन में रखते हुए हर काम करना है कि जो हम दुनिया में काम करेंगे उसका बदला मिलेगा। कहते हैं ना, जो आप बीज बोएंगे वही आप काटेंगे, तो जो बोना है वही हमने काटना है। तो इन चीजों को हमने आगे लेकर इस तरह से जाना है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो अपने लिए बेहतरीन अमाल हमारे पास हो कि दुनिया का माल सब कुछ यहीं रह जाना है। हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे तो सबसे पहले अपनी नमाज को बेहतरीन करना है। फिर इसके साथ साथ हमें जो जो अवामिर यानी कि जिन बातों का हुक्म दिया गया उन पर हमने मुकम्मल अमल भी करना है। कुरान कितना आसान है। आज के लेसन में देखिए सिर्फ 6 अल्फाज नए हैं और ये 6 अल्फाज जब आप पूरे पेज पे इसको लेके आएंगे तो आप देखिएगा कि जब इंशाल्लाह हम 11वां सफा पढ़ेंगे तो हमें 1 या 2 नए अल्फाज मिलेंगे। वो 1 2 नए अल्फाज ऐसे हम QC5 तक हो सकता है हमें सिर्फ 1 2 ही नजर आते रहे। उसके बाद ये होगा कि बहुत सारे अल्फाज हमें रिलेट करने आ जाएंगे कि ये जैसे अब हमारे जब हमने सेहतमंद अफाल किए उनसे मिलते जुलते कुछ हमारे पास आ गए कमजोर अफाल। अब कमजोर अफाल और सेहतमंद अफाल जैसे ही हमने मजीद पीही में से भी कुछ टेबल्स निकाल लेने जो हम देखेंगे कि अगर कमजोर में होंगे तो क्या बनेंगे, अगर मजीद फीही में आ जाएंगे तो क्या बनेंगे। जैसे हमने आलिमा से अल्लामा देखा, अब ये हुआ कि आइन लाम मीम मादा से हमने ये चीजें सीख ली। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हासाबा, उसने हिसाब लिया, तो हसाबा का क्या मतलब होगा? हसाबा का मतलब होगा उसने हिसाब किया। अब आप देखिएगा हिसाब करने में और हिसाब लेने में फर्क है ना, थोड़ा सा माना में। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा माना में तब्दीली आ जाती है। थोड़ी सी जो अल्फाज की कंस्ट्रक्शन वो उसको थोड़ा सा घटा बढ़ा लिया जाता है, उसमें थोड़ी सी देखने में थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनके माना भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं और थोड़े थोड़े से अल्फाज जाहरी तौर पर भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम इनको मजीद अफ़आल पर उतारेंगे तो थोड़े थोड़े से इनमें भी मतलब चेंज होते जाएंगे। तो ये जिस सिस्टर का क्वेश्चन था उनको समझ आ गई इस बात की? चैट बॉक्स में किसी ने पूछा हुआ था। जी हाँ जी, चलिए जी, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो यहाँ पर ना आजान हो रही है, सिर्फ 1 2 मिनट रुक जाते हैं। कल भी मैं इस तरह से पढ़ रही थी कुरान और पीछे आजान हो रही, जरा सा रुक जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी
واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ بائی ورڈ اور اس کا ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یا حروف ندا جیسے ہم کسی کو آواز دے کر کہیں کہ اے، اب بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں۔ اب چونکہ اردو میں بھی ترجمہ ایسے بنی اسرائیل والا کیا جاتا ہے تو ہم اس کو اے بنی اسرائیل ہی کہیں گے۔ اے بنی اسرائیل اذکرو، جی بتائیے گا اذکرو کہاں سے آیا ہے اور کون سا یہ فعل ہے، کون سا یہ صیغہ یہاں پر یوز ہوا ہے؟ امر جمع امر ہے جمع اذکرو، ٹھیک ہو گیا جی، اذکرو الحمدللہ، جزاک ناصر اللہ آباد خیر۔ اب ہے اذکرو نعمتی، نعمتی جیسے ہم کہتے ہیں قلمی، اسی طرح سے ہے نعمتی میری نعمت۔ تم سب یاد کرو میری نعمت اللہ تی۔ اب یہ اللہ تی کیا ہے؟ اللہ تی، اللہ مؤنث، اللہ کی مونس اللہ تی، اور یہ یہاں پر مؤنث کیوں آ گئی اللہ تی؟ اللہ زی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ نعمت کی وجہ سے، نعمت مؤنث ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے انعمتو، انعمتو میں نے انعام کیا۔ ہم نے یہ جب پہلے یہ والی آیت مبارکہ پڑھی تھی اس دن ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ ہم سورہ فاتح میں پڑھتے ہیں انعمتا، اور اب ہے انعمتو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اب اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جب وہ والی ہم نے سورہ فاتح والی آیت مبارکہ پڑھی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ ہم جو بندے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انعمتا تو نے انعام کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم سب پر۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ایک مزید، اچھا جی، وَأَنِّي اور میں نے اسی طرح سے جیسے ہم اچھا جی، یہ کس کا مائک اتنا شور کر ہے؟ اگر وہ سسٹم تو السلام علیکم میم، پلیز سب کے مائک آپ خود میوٹ کر دیں، نہیں آواز آ رہی آپ کی، نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا جی، اب آپ لوگ ہاں جی مائک اپنے ذرا آف رکھیے گا، جب میں آپ سے پوچھوں تب آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بالکل اس طرح سے تو میوٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ بالکل آپ لوگ کچھ بولے ہی نہ۔ جہاں میں آپ سے پوچھوں، آپ کو اس لیے اب ہم بڑے ہو گئے نا، اب ہم الحمدللہ سے اپنے 3rd لیول پر ہیں، QC 1 میں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اب QC 3 میں انشاءاللہ آپ اپنی اس طرح کی عادت بنائیے، آپ ہاتھ رکھیے، جیسے ہی آپ انمیوٹ کرتے ہیں آنسر دیجیے، میوٹ کر لیجیے، کیونکہ اب یہاں میں پوچھنا چاہ بھی رہی ہوں نا آپ سے۔ اب دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں فضلتو، فضلتو ہم نے پڑھا ہے علامہ، کچھ آپ کو لگ رہا ہے اس سے ملتا جلتا؟ کہاں پہ یہ صیغہ کہاں فٹ ہوگا؟ علامہ علمتو علمتو، الحمدللہ جی، علمتو کی طرح یہ ہے۔ اچھا جی، فضلتو، تو یہ پہلا صیغہ مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ علامہ کی طرح کیا لکھنا چاہیے؟ فضل اور دوسرا کیا ہونا چاہیے مضارع کا؟ نہیں یفضلو یفضلو، یفضلو، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ہمارا علم کی طرح؟ فضل ٹھیک ہو گیا، فضل۔ اور اس کا اگر میں پوچھوں آپ سے کہ جو اسم الفاعل ہے کیا بنے گا معلم کی طرح؟ مفضل مفضل مفضل،
اور اب यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुफद्दलुन मुफद्दलुन मुफद्दलुन। ये इस तरह की मैंने कहा आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे गूगल फॉर्म में। अच्छा अब ये हमारे हो गए सीगे मफूल तक, और अब इसका क्या होना चाहिए, मस्तर। कोशिश, मैंने रोक दिया लिखना। तफईल के वजन पर बनाइए, जो जहन में आ रहा बनाइए। तफदील तफदील, अल्हम्दुलिल्लाह, तफदील तफदीलुन। ठीक है, अब हमारे पास है तालीमुन। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेबल है फद्दला, इसका बाब क्या है, तो आप कहेंगे ये है बाबे तफईल तफईल, तफईल तफईल, बाबे तफईल जैसा। और इसका ये जो हम ये भी बात पूछते हैं कि ये किस टेबल जैसा है, हम कहेंगे ये अल्लामा जैसा टेबल है। ठीक हो गया जी, बाब हमारा तफईल है और ये हमारा अल्लामा जैसा ये है फेल। और इसके रूट लेटर क्या होने चाहिए, और लाम। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। अब ये मुझे मेरी आवाज बड़ी ही कोई अजीबोगरीब सी है, ये जिस सिस्टर को मेरी आवाज सही नहीं आ रही आप रीज्वाइन कर लें। अच्छा जी, फद्दल तू, मैंने फजल किया। अब आप देखिए अन्नी भी मैं था, वो अन्नी मैं, फद्दल तू यानी कि मैं ही हूँ जिसने तुम सब पर फजल किया। ताकीद पैदा करने के लिए दो तरह से जमायर को ले आया जाता, एक फद्दल तू वाला मैं अपनी तरफ, एक अन्नी। और बेशक, और ये कि मैं ही हूँ जिसने तुम सब पर फजल किया, यानी कि फजल किया, अलल आलमीन, किस पर, तमाम जहानों पर। इंसानों को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, अशरफुल मखलूकात। हर तरह की जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की उनमें से इंसान को बरतर बनाया, अफजल बनाया। आप जानवरों के चलने के स्टाइल, रहने के स्टाइल, इन सब चीजों को देखें तो कितने प्यारे तरीके से इंसान का चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, हर चीज को जैसे मैनेज करके अल्लाह ताला ने इंसान को हर 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 चीज पर फजीलत दे दी। और अब हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है कि हमने अल्लाह ताला की नेमतों को याद करते हुए, याद रखते हुए अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करना है। जब ये सारी चीजें चीजें सोचेंगे ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला की हमद, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए जब ये बातें सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या मुझ पर फजल किया है, तो खुद ब खुद जो शुक्र के जज्बे है ना, ये इससे इंसान सरशार होता है। इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत भी डालनी है। ठीक हो गया जी, ए बनी इसराइल, जो कुछ नेमतें मिली हैं उन पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फद्दल तू, यहाँ आ गया, तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, यानी तुम्हें हिदायत का अलमबरदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया था तो देखिए किस चीज में फरिश्तों से उनको फजीलत दी थी, इल्म से, यानी कि हिदायत मिली इंसान को। तुम्हें लीडर और कायद बनाया, तुम्हारी कौम में तुम्हारे पास रसूल भेजे और तुम्हें बादशाह और हाकिम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे लिए क्या पैगाम है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत यानी कि उम्मत मुहम्मदिया को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान मजीद अता फरमाया। कमो बेश 1000 साल तक दुनिया भर की हुकूमत और क़यादत से नवाजा। अब कैसे नवाजा, क्योंकि जो एक पीछे दौर गुजर गया, हम कहते हैं कि मुसलमानों की वो हुकूमत थी और ये सारी बातें जब सोचते, उन लोगों ने कुरान पर अमल किया, कुरान को छोड़ा नहीं। आज हम क्यों इतना पीछे आ गए, हमने कुरान को पीछे कर दिया, दुनिया को आगे कर लिया, और इसी तरीके हम निहायत पछता हाल हैं और सबसे पीछे। इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है। तो इसकी तरफ खुद भी आना है और दूसरों को भी कुरान की तरफ लाना है। अल्लिम, अच्छा जी, अल्लिम में मैं ऐसा करती हूँ कि एक एक वर्ड के हम यहाँ पर टुकड़े भी बता देती हूँ और एक एक लफ्ज का माना तो हम कर ही चुके हैं। या बनी इसराइल, या बनी को आप इकट्ठा ही रहने दें, इसको आपने टुकड़े नहीं करने। इसराइल एक पूरा वर्ड,
उज़कुरू, अगर इस तरह से दे दिया जाए, या बनी को अलग कर लें, इसराइल को अलग कर लें और उज़कुरू को अलग कर लें, नेमत को अलग कर लें और या को अलग कर लें। जी सिस्टर जवेरिया। सिस्टर जवेरिया सॉरी आप टीचर, गलती से ओके ओके नो प्रॉब्लम। अल्लाती पूरा एक जुमला या कलीमा, अन तो इसके भी टुकड़े नहीं होंगे, अलैकुम के 2 टुकड़े कर लेंगे, वा अन प्लस या, ठीक हो गया जी। ये छोटा सा मुन्नू सा लफ्ज और देखिए इसके हमने 3 टुकड़े कर लिए। फद्दल तू और कुम यहाँ पर 2 टुकड़े करेंगे, आला अलग है और आलमीन। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि आलमीन जो है ये आलिमू की जमा है या आलामा या आलमी की? आलमा और आलमी की। हाँ, उनमें से किसी की भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने ये इसको समझा नहीं है कि कहाँ पर ये आलिमा वाली होगी और कहाँ पर आलिमी वाली होगी। अभी हमारे लिए इतना काफी है कि अगर पेश होगी तो हमने वाव नून लिख देना है, अगर हमें जबर या जेर नजर आती है तो हमने उस सूरत में इसको आलमीन या नून वाली जमा बना लेनी है। अच्छा जी, एक लफ्ज होता है आलम और एक आलिम। जब आपको भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मुझे अब याद नहीं कि ये QC1 में था, 2 में या 3 में, यही कहीं पे ये एक क्वेश्चन इस तरह का था कि आलिम और आलम 2 लिख दिए गए, फिर जमा बताई गई थी कि इसकी जमा कौन सी है। तो उसमें बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब आप अपने क्विज करते हैं, जब आप अपने होमवर्क करते हैं, तो उसको जूम किया करें, पिंच आउट किया करें और पिंच, इसमें फिर आपको ये होगा कि आपको पूरा वो एक नुमाया नजर आ जाएगा कि इसकी जो इसके ऊपर छोटी छोटी सी हरकत की वजह से माना पूरे चेंज हो जाते हैं, वो गलतियां नहीं होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उस्कुरू निअमती, उस्कुरू निअमती, सी उस्कुरू, उस्कुरू, अमर अमर मेरी नेमत को याद करो। याद करो। मेरी नेमत को याद करो। ठीक हो गया जी। उस्कुरू यानी कि हम कहते हैं तुम सब याद करो नेमत मेरी या मेरी नेमत को, तो इसको हम रवा तर्जुमा भी बना सकते हैं ना, मेरी नेमत को याद करो। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारे एहसानात किए हैं। अब आपको मिल रहा है कि कौन कौन से आंसर होने चाहिए सही? सारे सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनाम किया, मैंने इनाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारा जो अगला वाला अगली आयत मुबारक है उसको भी देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया है वत्तकू। वत्तकू ये हम टेबल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इतना समझ लेते हैं इसको कि वाव अलग है और इत्तकू कौन सा बन रहा है? ये कौन सा से इत्तकू फेल फेल हम निकालना पड़ेंगे। इस फेल को अभी हम फेल पे नहीं जाते, अभी हम इतना कह देते हैं कि हमें पता चल रहा है कि इत्तकू, हमने एक आरजी जेर लगाकर जो इसका माना भी नजर आ रहा है, और डरो। और देखने इत्तकू और डरो, यौमन दिन को कहते हैं। इसके बाद है ला नहीं तजजी, तजजी वाला टेबल हमने किया हुआ, कौन सा टेबल था ये? जजा जजा यजजी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये जो तजजी है, हमने कहा था कि तजजी 2 मरतबा यूज हो जाता है, तो ये कौन सा वाला होगा? बदला ये सजा। नहीं नहीं एक होता है अंता तजजी और एक होता है हिया तजजी। हिया तजजी, अब ये यहाँ पर क्या है? हिया हिया तजजी। तजजी। अच्छा जी, अब इसका हमें कैसे पता चलेगा? एक तो हमें चीज नजर आ रही है कि ये जो नफ्स है हमारे पास, नफ्स, हमने कहा था नफ्स मुअन्नस है, हमारी जो जान है ना, जान, ये नफ्स जो है ये मुअन्नस है। और दूसरी क्या चीज है कि अगर हम कहें कि ला नहीं तुम बदला बनो, कोई शख्स किसी शख्स का, तो ये सेंस ही नहीं बन रही ना, ये तर्जुमा बन ही नहीं रहा। जबकि यहाँ तर्जुमा है कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी शख्स का, यानी कि कोई शख्स किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा, चाहे वो खून के रिश्ते हों, चाहे वो ये जो दोस्ती होंगे, जो भी हो, कोई किसी के लिए, इसमें खास तौर पर ये जो कीरी फकीरी वाले जो अंदाज है ना, कि जिसमें वो बड़े यकीन से कह देते हैं कि हमारे वाले रास्ते पे चले तो हम आपको कर लेंगे। खैर, में इस बहस में हम जाएंगे भी नहीं और हमने जाना भी नहीं है।
अच्छा जी, इसमें है कि उस दिन कोई शख्स किसी का बदला, कुछ भी बदला नहीं बनेगा, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं, नफ्स की जमा बताइएगा। अनफुस अनफुस और नफूस ठीक हो गया जी। शैयन कुछ भी, वाला। अच्छा जी, अब ये जो युकबलू नजर आ रहा है, युकबलू, अच्छा जी, इसका माना है और ना कबूल की जाएगी। अब ये क्या लग रहा है आपको, इसमें कुछ आपको फर्क लग रहा है मुदारे से और मजहूल। मजहूल ये मजहूल है, है मजहूल है। असल में ये क्या था, पेश है काबिला यकबलू, कबीला इकबल काबिल मकबूल अब उससे ये बन गया युकबलू। ये कौन सा पैटर्न है, ये आपको कुछ इससे काबिला से पता चल रहा है? इसके जैसा कौन सा टेबल करके आएगा? सामिया सामिया सामिया, सामिया यस्माउ काबिला यकबलू। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये मजहूल है, इसका तर्जुमा भी बता रहा है, ये वाली पेश भी बता रही है, ये जबर ने भी बता दिया और इसका तर्जुमा भी बता रहा है, और ना कबूल की जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं अगले वर्ड पर। अच्छा जी, आगे है मिनहा उससे, मिनहा उससे। ठीक हो गया जी। कोई सिफारिश ना कबूल की जाएगी, ये जो शयन है मिनहा, ठीक है, कोई सिफारिश वाला, और ना यू खजू। अब यू खजू ये कहाँ से आया है? हाँ, क्या है, आखाजा से, आखाजा। ठीक हो गया जी। अब हम लिखते आखाजा यखुजू। याखुजु उस अब यहाँ पर ये चेंज है थोड़ा सा, ये भी मजहूल है ना। ये भी मजहूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। कमजोर जो होते हैं ना, कमजोर, इनमें सिर्फ हरकत की तब्दीली नहीं आती, इनमें हर्फ की भी तब्दीली आ जाती है। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ये जो पेश है ये अपने बाद वाओ ही चाहेगा ना, तो यू खाजू बन गया। ठीक है जी। वाला यू खाजू मिनहा, और ना लिया जाएगा उससे बदला। अदलुन, अदलुन को हम वैसे इंसाफ वाला कहते हैं ना, अदलुन का मतलब होता है बदला। वा और ला हम नहीं यून सारून। अब यून सारून को भी देख लेते हैं, ये कौन सा टेबल है? ये भी मजबूत ये भी मजहूल है। नसरा नसारा यंसुरु, सारा का और इसकी जमा मजहूल है यंसुरूना। तो अब ये बन गया मजहूल युनसरूना। ठीक हो गया, क्योंकि इसका भी देखें, मदद की जाएगी, ना कबूल की जाएगी, ना लिया जाएगा। तर्जुमे से भी हिंट मिल जाता है, और ये जो ऊपर पेश आ जाती इससे भी हमें पता चल जाता है। ठीक हो गया जी। वैसे यंसरा था तो ये यंसुर युनसरू बन गया। अब हम इनके जरा टुकड़े वगैरह भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ टुकड़े बनाए जा सकते हैं। वाह और इत्ता को हमने देख लिया एक जी। क्वेश्चन आप जी, कोई दूसरी आपने भी कहा था यू खजू के साथ है कि मजबूत के साथ अल्फाज भी चेंज हो जाते हैं तो मैं आपकी आवाज समझ नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। इसलिए आप अगर किसी और जी को मैं इनकी कह रही आवाज हूँ अच्छी अभी से आ आपने रही है कहा तो था मुझे बता कि दो। जो कमजोर हर्फ होते हैं उनमें जब ये कह रही है कि यू खाजू यू खाजू की ये बात कर रहे हैं। कमजोर जो है तो ये कमजोर के साथ कमजोर में इससे ये ज्यादा जो फर्क अलग की पड़ेगा। जगह वाओ आ गया वो पूछ रही हैं। जो खाजू अल्फाज भी चेंज ये देखें, ये असल ये जो हमने मालूम वाला पढ़ा था, ये था यखुजू। अब हमने चूंकि शुरू में पेश ही लानी है ना, पेश से ही मजहूल की निशानी है ये पेश। ठीक है, अब हमने ठीक है या के ऊपर पेश लानी है। अब हम अगर पेश लगाते हैं तो हम ये पढ़ नहीं सकते,
ये अलिफ हम इसके साथ कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ना नामुमकिन है ना, ये हम पढ़ नहीं सकते इसको। तो हम क्या करेंगे, हम ये अच्छा इसको इस अलिफ को तब्दील करेंगे। ये हमने QC2 में किया भी था ना, इसकी थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस की थी, ज्यादा नहीं की थी, ज्यादा हम करेंगे इंशाल्लाह QC4 में। अभी के लिए जो इस तरह से लिखे जाते हैं ना, उनको खोल के दिखा भी दिया जाता है, बता दिया जाता है, उनको आप याद रख लिया करें। ये जब हम इंशाल्लाह पूरे पूरे टेबल बनाने लग जाएंगे, फिर ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जैसे अब ये यू खाजू है, और अक्सर ये है ना, ये मजहूल वाले मुंह पे चढ़ते भी जरा मुश्किल से है, यू खाजू, और इसके लिए थोड़ा सा इशारा भी यूं करके हो जाता है, यू खाजू ना, तु खाजू, तु खाजूना, नु खाजू, और हिया तु खाजू। तो ये थोड़े से बोलने में भी मुश्किल होते हैं, और इनका ये जो तर्जुमा, ये भी हमें हिंट दे देता है कि यहाँ पर ये मालूम वाला नहीं यूज हुआ, बल्कि मजहूल वाला यूज हुआ। ये लफ्ज जो है ना, ये जो इनके यानी कि जो हम जितने भी अपने अफाल वगैरह अस्मा, इनके कोई ना कोई नाम तो होते हैं ना, तो उन नामों को भी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता से अपने ग्रामर में ले आएंगे, नामों को भी याद रखेंगे। तो जिनको हम सिंपल वाले कहते हैं ना, ये होते हैं मालूम। अगर आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ये मालूम है, जैसे यखुजू ये मालूम है, और युखजू ये मजहूल है। ठीक हो गया जी। और कोई बात इसमें से पूछने वाली हो, मिन्हा के दो टुकड़े कर लेंगे, इसके बाद मिन्हा, मिन्हा ये इसके टुकड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, शफाअतुन, ये हम शफाअत उर्दू में भी यूज करते हैं ना, वही वाला ही है। अच्छा जी, यहाँ सही होगा बताइए जी। शफातुन एक ही लफ्ज होगा फिर? हाँ जी, शफाअतुन ये एक लफ्ज है, एक जैसे शफाअत हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ये वही है। आखिरत के दिन से डरो, बनी इसराइल के यहाँ नेमती एक लफ्ज है। शफाअतुन। अच्छा जी, अच्छा जी, ये नेमती, शफाअत, हाँ जी, नेमती। शफाअतुन, जैसे हम, आपकी आवाज बहुत खराब हो ने, गई है। अच्छा हाँ उनकी तरफ मुझे, से बहुत खराब आ रही है, लेकिन वो नेमाती का पूछ रही थी, और वो दो है नेमाती, वो या जो है वो मेरी वाली। पीछे आ जाएं। ये सिस्टर निकत परवेज ना नेमाती का पूछ रही है। अब आपको मेरी ये वाली स्लाइड शो हो रही है? हाँ ये जी देखो, ये सिस्टर दो हो रही है। टुकड़े हो गए, एक और दो। ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं अला प्लस कुम, अलैकुम हो गया, फद्दलतु प्लस कुम, इस तरह से हम टुकड़े बनाते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस या को देखते हम अल प्लस ती कर लें, कुछ चीजों के टुकड़े करें तो वो कीमा बन जाता है। ठीक है, तो हमने चूंकि कीमा नहीं करना, हमने सिर्फ टुकड़े बनाने हैं। टुकड़े कैसे बनते हैं, क्योंकि निअमत एक अलग लफ्ज है, और ये जो या है ये इसम जमीर है, नेमत एक अलग इसम है। ठीक हो गया। हम अगली भी स्लाइड पे वो जो वो वाला कह रही थी उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर शफात एक ही है, एक वर्ड है। आखिरत के दिन से डरो, बनी इसराइल के यहाँ आखिरत के दिन से मुतालिक ये गलत तस्वुर राइज था कि वो किसी ना किसी तरह आखिरत की सजा से बच सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि उस दिन कोई किसी का बदला नहीं बनेगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा, यानी कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। ये जो नंबर वाइज लिखे हुए ना, इनको आपने इसी तरह से याद रख लेना। जैसे आपसे पूछा जाए कौन से चार काम थे, अल्लाह ताला ने उस दिन के लिए कौन सी चार चीजें बताई, आप कहेंगे आखिरत, यानी कि कोई किसी के काम ना आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई किसी का बदला नहीं दे सकेगा, उस दिन किसी शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा होगा, और किसी तरह से उनकी मदद नहीं की जाएगी। अच्छा जी, इसमें ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ से
اپنی آیت مبارکہ سے ریلیٹ کریں. تو یہ ہمارا ہے کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یقبلو کہ نہیں قبول کی جائے گی شفاعت, کوئی کسی طرح کی سفارش. اور تیسرا یہاں پر یہ ہو گیا کوئی کسی کو کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا. نمبر 4 پہ آ گیا ولا ہم ینصرون. اگر آپ اپنی بکس پر ساتھ ساتھ لکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو الگ سے یاد کرنی بھی نہیں پڑیں گی. آپ کو یہ 4 باتیں اس آیت مبارکہ کی حفظ ہو جائیں گی اس طرح سے کہ جب آپ اس آیت مبارکہ کو اسی طرح سے ترتیب سے پڑھیں آگے جائیں تو آپ کو یہ 4 باتیں انشاءاللہ, میرا تو خیال ہے کہ ابھی کی ابھی یاد ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا, اے قریش کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ جب کوئی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بات بالکل بچا ہے کہ وہ اگر کہیں تو اللہ رب العزت ضرور مان سکتے ہیں, اور یہ اس میں کوئی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو لوگ یہ والے دعوے کرتے ہیں ان پر کس طرح سے بلیو کیا جا سکتا ہے. اے بنی عبد مناف کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اس کے بعد اے بنی قصا کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو. پھر دوبارہ سے بتائی, یہ اس طرح سے تاکیدن بتائی بات, ایک جو تھا گروپ تھا ان کے لیڈرز کو, ان کو پکار کر کہا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا کوئی ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر انہوں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کہا, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. بنت محمد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, خون کا رشتہ. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائی اور وہ پوری طرح سے, جیسے کہتے ہیں نا اسلام میں پورے داخل ہو, جو پورے داخل ہوئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یہ بتایا. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنے لیے کہتے ہیں نا آخرت کی تیاری جو ہم نے اپنے لیے خود کرنی, ہم خود ہی کر سکتے ہیں. بعد میں تو دیکھیں بچے قبرستان کے چکر نہیں لگاتے, تو ہم کیسے کہیں کہ یہ ہمیں پڑھ کر بخشیں گے. ٹھیک ہے کیا جی. اب یہاں پر وَاتَّقُوا یَوْمًا, اور ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفسی, کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی شخص کا. اچھا جی, ان نفسی, نفسن ان نفسی, اس کو پورا اکٹھا یاد کر لیں. ٹھیک ہوگا جی, کہ کوئی شخص کسی شخص کا, یعنی کہ کوئی شخص کسی شخص سے. اب سے کے لیے اب وہ کیونکہ پورا پھر مطلب سمجھ میں نہیں آتا, تو تھوڑے اردو کی مجبوری کے لیے ورڈ اس میں ایڈ کر لیے جاتے ہیں. شیئن, کچھ بھی والا ترجمہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ جو تنوین ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک چیز یا کوئی چیز, یہ یعنی نکیرہ ہے. اگر یہ معرفہ ہوتا تو اس کے ساتھ ال لگ جاتا, پھر کسی ایک خاص بات چیز کے بارے میں کہا جاتا. اس کے بعد ہے ولا یقبل, اور نہ قبول کی جائے گی, منہا شفاعت, اس سے کوئی سفارش, ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. اچھا ایک چیز آپ اور نوٹ کیجئے گا, یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, اکثر انہی میں سے کوشچن بن جایا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دے دیا جائے ولا یقبل منہا شفاعت, اور کہا جائے اس کا درست ترجمہ منتخب کریں. پھر آگے ایک فریز ہے ولا یؤخذ منہا عدل. تو اس چیزوں کو ذرا تھوڑا سا نظر ثانی کیا کریں, دوبارہ سے دیکھا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں آپ کو بتا دیا جائے ینصرون لکھا ہے, اس کے نیچے لکھا کہ وہ مدد کرتے ہیں, اس نے مدد کی, ان سب نے مدد کی, اور ایک رائٹ آپشن لکھ دیا جائے, اور نہ ہی
جیسے ان کی مدد کی جائے گی. تو ان چیزوں کو آپ نے غور کرتے ہوئے ترجمے کو اس طرح سے فریز اچھے سے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ. لا تجزی نفس عن نفسی. جی سسٹر نورین نے ہینڈ ریز کیا. سسٹر نورین رمضان جی. سسٹر جیسے یہ ولا یؤخذ لکھا تھا، یہ مواخذہ، اس کو ہم مواخذہ میں بھی لے سکتے ہیں ہاں جی کہ کہہ مواخذہ سکتے ہیں. ہوگا. اچھا جی مواخذہ. جیسے یہ کس کے جیسا لگ رہا ہے لفظ مواخذہ؟ مواخذہ کیا جائے گا نا. جیسا ہم نے ٹیبل پڑھا ہے، کون سا ٹیبل پڑھا ہے، اس کا اسی طرح کا بن رہا ہے. حاسبہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی ایسا ٹیبل بن سکتا ہے کہ جس کا مواخذہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے مصدر، ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بھی آپ اس کو کیا کریں. مواخذہ وہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا، اور یہاں پر بتا دیا کہ کوئی بدلہ کوئی نہ لیا جائے گا، کوئی یہ نہیں کر سکے گا کہ کوئی چیز دے کے تو اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے. ہاں یہ ہے کہ انسان کی جو فرض نمازیں ہیں وہ اس سے جب کم پڑ گئی تو پھر نفل نماز وہ اس کی وہ ان چیزوں کی ادلا بدلی ہوگی، یا یہ چیزیں بدلہ بن سکتی ہیں. کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں بن سکتا. لا تجزی نفس عن نفسی، کیا کون سا ترجمہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ کوئی کسی کو بدلہ نہ دے سکے گا. الحمدللہ. عدل. کوئی بدلہ. آپشن بدلہ. بی. الحمدللہ. ولا هم ينصرون. یہ دوبارہ اس طرح سے کوشچن بنا لیے جاتے تاکہ یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے. اور نہ اور نہ ان کی مدد کی جائے. الحمدللہ جی. اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں طاقت نہیں رکھتا. سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے 2 آنسر ہو گئے. یہ زندگی سے لطف اٹھاؤ والا نہیں آپ نے چوز کر لینا. اچھا جی آخرت کے دن بتائیے گا. سارے آنسر. کوئی کسی سارے الحمدللہ. ترجمہ ہم نے رواں بھی دیکھ لیا، ورڈ ٹو ورڈ بھی دیکھ لیا. اگر کوئی کوشچن ہے یہاں سے تو اس کو دیکھ لیتے، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. چلیے جی پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. اسباق ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو. آخرت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. اب یہاں پر ہمارا یہ جو گہرے تصور اور احساس سے ہم نے 4 چیزیں کرنی، اس میں سے ہم دعا دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اے اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما. زندگی کے ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا. پلان بناتے ہیں اچھا سا پلان کہ انشاءاللہ میں وقت کو بہترین استعمال کروں گی. استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گی تاکہ مجھے آخرت میں کامیابی مل سکے. نہیں تو پھر موبائل پہ ہی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے سارا. اگر شیڈول نہیں بنائے گا نا تو اسکیجول ہونا چاہیے. اچھا جی اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. یوم، ایام، بس ایک. چلے جی. اچھا جی ذکرہ، یہ ہے فتح، نصر، ضرب، سمیہ، یعنی کہ 3 حروف والے صحت مند افعال. ذکر، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور. ذکر اس کے بعد ہے قابلہ، یقبل، اقبل، قابل، مقبول اور قبول. ٹھیک ہو گیا جی. قابل بھی یوز ہوتا ہے، مقبول بھی یوز ہوتا ہے، اور قبول تو یوز ہوتا ہی ہے. مصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. اچھا جی یاد رکھنے والی باتیں کیا ہیں؟ ان کے روٹ لیٹر ہیں، ان کے مین ابواب جو مین ہم نے پڑھے تھے کہ جیسے واقعہ نوسرا جیسا ہے، سامیہ جیسا قابلہ ہے، اور نوسرا خود اپنے جیسا ہی ہے. اچھا جس کے بعد کمزور حروف دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس 3 طرح کی کیٹیگریز ہوگی، صحت مند، کمزور، اور اب ہم جو نئے کر رہے ہیں ان کا نام بتائیں مجھے جلدی سے. مزید فی. مزید فی، زیادتی کی گئی یا زیادہ کیا گیا اس میں. جزا، یجزی، اجزی، جازن، مجزی، جزاؤن. اخذ، یأخذ، خذ، آخذ، مأخوذ اور اخذ. یہ جو جتنے بھی ٹیبل ہیں نا، اب جیسے ذاکرہ کو تو ہم نے بہت دفعہ کیا، و ناصرہ کا بہت دفعہ کیا. اب قابلہ جو ہے نا یہ ایک نیا ٹیبل ہے. کرنا کیا ہوتا ہے؟ قابلہ، قابلو، قبل تک،
कबिलता कबिलतु कबिलतुम कबिलना यकबलु यकबलूना तकबलु अकबलु तकबलूना नकबलु और हिया तकबलु इकबिल इकबलु ला तकबिल ला तकबलु काबिलुन मकबूलुन कबूलुन। इसके पूरे पूरे टेबल लिखने का टाइम नहीं है तो इस तरह से आप रवानी से पढ़ पढ़ के इसको पक्का करने। ये दोनों टेबल हमने बहुत दफा किए हैं QC2 में। यानी कि अब आप देखिए कि सेहतमंद का सिर्फ एक टेबल है जिसकी हमें अगर लिखनी भी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा काम है। अच्छा जी, अनअमा, ये असलमा जैसा इसका हम आज टेबल कर लें फिर इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं अल्लामा। अब ये जो आगे प्लस का साइन है ना, ये बता रहा है कि मजीद है, मजीद ये माजी का आलिमा है और इसमें कुछ ना कुछ ज्यादती की गई है माजी के हरूफ में, क्योंकि अनअमा में भी हम देखेंगे कि ये जो हमजा है यही ज्यादा है, नून आइन मीम ये मादा के हरूफ हैं, तो मादा में तब्दीली नहीं है, यानी कि रूट लेटर में कोई इजाफा या ज्यादती नहीं की गई, बल्कि माजी के पहले वाले सीगा में की गई जो फिर चलती रहती है आगे। उसके बाद है फद्दाला। फद्दाला का टेबल हमने अभी लिख के भी देख लिया था। फद्दला युफद्दिल मुफद्दिल मुफद्दिल मुफद्दल और तफदील। ठीक है जी, फद्दला फद्दलु फद्दलता फद्दलतु फद्दलतुम फद्दलना या फद्दलत। युफद्दिलु युफद्दिलूना तुफद्दिलु उफद्दिलु तुफद्दिलूना नुफद्दिलु या तुफद्दिलु फद्दिल फद्दिलु ला तुफद्दिल ला तुफद्दिलु मुफद्दिलुन मुफद्दलुन और तफदीलुन। ये जब आप इस तरह से ये टेबल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ी रवानी आएगी। उसका एक फायदा ये भी हो जाएगा, जब पूरा टेबल हमें पता हो तो हमें फद्दलतु फौरन समझ में आएगा कि ये अपनी तरफ वाली बात हो रही है फद्दलतु की। अच्छा जी, इनको हम करते हैं स्किप स्किप स्किप। अब हम इंशाल्लाह अपना ग्रामर पोर्शन शुरू करते हैं। चलिए जी, आज हमारा है सफा नंबर 6 के इशारा डी के साथ जो हमने ग्रामर का टेबल पढ़ना है वो है अस्लमा। अभी हमने अल्लामा और हासबा दो तरह के टेबल पढ़े। आज हम एक तीसरी तरह का टेबल, हमने कहा था तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि दो हम कर चुके, तालीम भी हो गया, मुहासबा भी हो गया, आज इस्लाम की बारी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये है अस्लमा। 72 टाइम इस तरह के अफ़ाल कुरान मजीद में यूज हुए हैं। और ये जो स्माइली है ये कह रही है कि आसान है, कुरान आसान है, तो आपने भी हंसते मुस्कुराते इंशाल्लाह ये सीख लेना है। आज का हमारा टेबल है अस्लमा। अब आप देखिए कि आमाना बहुत बड़ा सा लिख के बताया गया, आमाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि आमाना जब सबसे बड़ा है तो सबसे पहले हम आमाना का टेबल क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें थोड़ी सी चाहिए, तवज्जो ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो हमारा जो सिंपल वाला टेबल है वो अस्लमा। अब मैं कहती हूँ अस्लमा टेबल से हम बनाते हैं इस्लाम। अब हम लिखेंगे, ठीक है। अब आपने पैटर्न यूज रखना, इफ़आल लिख भी देती हूँ। ये हमारा होगा बाबे इफ़आल। आप इसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो मजीद इसकी समझ आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसका जो हमने मस्दर अपने सामने रखना है वो बना है इस्लामुन, यानी कि अस्लमा से बना अस्लमा से बन गया इस्लाम। अब हम देखते हैं अरसला से क्या बना, क्या बनेगा? इरसाल। आसान है, इरसाल। इरसाल। हम क्या करते हैं इरसाल? अच्छा, ये खत मैडम जो रिसाला है बोलते हैं, हाँ, वो क्या होगा इसका? हाँ, वो ये जो है ना रिसाला, अब आप देखें
را سین لام. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہ جو ارسلا ہے نا, ارسلا ارسلا, اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہیں, را سین اور لام. اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کے ابواب میں سے آپ کو یہ نظر آ جائے گا. اور رسالہ کے آگے جو ہا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ضروری نہیں کہ ارسلہ والے ٹیبل میں سے ہو. ارسلہ والے ٹیبل میں مراسلہ تو نکل سکے گا, لیکن یہ کہ رسالہ پھر یہ ہو جاتے ہیں کہ اکثر مصدر بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل والا ہو سکتا ہے راسالہ کرے تو اس میں اس کا یہ مصدر ہی نکلا ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گی. میں نے تو یہ سارا ہی ریز کر دیا, چلے دوبارہ لکھ لیتے ہیں. اچھا جی, ہم نے کہا اسلمہ سے اسلام, اسلام, ارسلہ سے ارسال, اشرقہ سے اشراق. اشراق, اشراق, اشراق. اور احسنہ سے احسان, احسان. احسان. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. ماشاءاللہ کتنے جینیس ہیں آپ. اچھا جی, اس کے بعد اسلحہ, اصلاح, اصلاح. اصلاح, اصلاح کرتے ہیں نا, اصلاح. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہمیں ایک نظر آیا ہے یہاں پر اسرفہ, اسراف, اسراف. یعنی کہ اردو میں استعمال ہونے والے زیادہ تر الفاظ ہیں. ادخلا, ادخال, ادخال. ٹھیک ہو گیا جی. اسماء, اسلام اسماء, اسماء, اسمع. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہو جس میں کوئی وہ نہ ہو؟ میم یہ آمنا والا یہ ڈفرینٹ ہے, کمزور ہے اس میں. آمانا, یہ پورا ٹیبل کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ابھی اس کو اس طرح سے چھوڑتے ہیں. اخرجا بھی ہے, ہم نے کہا تھا, اخرجا. اخراج, ہم نے کہا اخرجا, تھا اخراج, امارا, یہ آپ کو یاد ہے ہم نے یأمرو سے پڑھا تھا اامرو. ٹھیک ہے, اامرو یعنی کہ میں حکم دیتا ہوں, میں حکم دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے نا, وہی کیس یہاں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا بدل دیا گیا نا, تو تبدیلی والے ہم بعد میں کریں گے. جی ابھی آپ نے کیا بتایا تھا, اس کو دوبارہ بتائیے گا. اخرجا اخرجا, اخرجا. اخراج, ابصرہ, اخراجا, ابصار. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. اچھا میں نے اخراج ہی چلیں لکھ دیا ہے, اخراج, یہ خراجہ سے نکلا ہے, اخراجہ سے اخراج. اور کون سا؟ اجرما, میں نون کے اجرما, اخسارا, نون کے بالکل بیچ میں چھوٹا سا, بہت مشکل پڑھنے میں, اور یہ یہ لیکن والا, اس کی شیپ وہی لگ رہی ہے. جی جی جی. اچھا جی. اخزر, احصارا, احصار. ٹھیک ہے, احاطہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ احصار کا جو حصار میں لینا, جی, گھیرنا. کرما اور اکرام نہیں ہوگا؟ کس کا؟ کارما. کرما اینڈ اکرام. ہم اکرما کارما کا نہیں کر رہے نا, اکرام ہم ہوگا, کر رہے ہیں اسلمہ. اکراما کا ہو وہ سکتا پھر ہے. اکرما کا ہو جائے گا, اکرما کا اکرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آنی ہے نا. اچھا ایک اور, احاطہ, احاط, اس میں کچھ خاص زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی نا. اچھا جی, اب ہم ایسا کریں گے, جو باقی آپ کو نظر آئے آپ اسی طرح سے آپ اس میں سے ڈھونڈ لیجئے گا. جیسے مجھے ایک پتہ نظر آ گیا ہے, تو اب جو باقی آپ کو نظر آئے آپ وہ گروپ میں لکھ کر سینڈ کیجئے گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پورا ٹیبل کیسے بنے گا, اور باقی یہ جو آمنہ کا ہم نے پورا ٹیبل کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صحت مند افعال کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی فریز یاد کی ہوئی ہے. اس کے بعد کمزور کے لیے یہ دونوں آپ ریویژن کلاس میں دہرائی کر کے آئے ہیں. یہ اب ضروری ہے جو ہم کا یہ والی اب والی جو ہے نا, اس کو فریز کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے.
आलिमा में हमने क्या किया था, अल्लामा एक तशदीद ज्यादा थी, यानी कि लाम दो हो गए थे, लेकिन ये ज़न्ना या जुन्नू जैसा नहीं बना था। क्यों? क्योंकि इसके मादा के जो हरूफ थे आइन लाम मीम थे, उसमें कुछ भी डबल नहीं हुआ था। अब सालिमा से अब एक हमजा ज्यादा है, सालिमा से अस्लमा। ठीक हो गया जी। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये जो आपको नंबरिंग इधर नजर आ रही है 1600, 500, 4500, 1200, 400, ये जो सारे फिगर आपको दिए गए ना, ये बताया गया है कि इस तरह के अफ़आल कुरान मजीद में अल्फाज कितने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। और जब ये हम देखते हैं कि हम एक टेबल से इन सारे अल्फाज का, चले माना भी हमें नहीं आता, हम उन सारे अल्फाज की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि अगर एक अल्लामा की जगह पे फद्दल आ गया, कज़्ज़ब आ गया, उसके 21 सीगे तो हमने आराम से बना लिए। अब रह गए मुअन्नस के, ड्यूल के, वो कम यूज हुए, वो ज्यादा यूज ही नहीं हुए। करेंगे QC4 में, लेकिन ये कि जो जितना ज्यादा यूज हुआ है कुरान मजीद में, हम उतना ही वो वाला लेसन ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। आज का हमारा है अस्लमा, उसने हुक्म माना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो हमजा है बस ये ज्यादा है। ठीक हो गया। बाकी सीन लाम मीम, अच्छा जी, सीन लाम मीम से सालामा बन जाता है, उसने सलामती दी, इस टाइप के माना निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर है उसने हुक्म माना या उसने फरमा बरदारी की। अस्लमा के सीगा में फाला के जैसे बस शुरू में एक हमजा को हमने साथ साथ लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, हम कहेंगे अस्लमा, उसने हुक्म माना, अस्लम उन सब ने हुक्म माना, असलम का आपने हुक्म माना, असलम तू मैंने हुक्म माना, असलम तुम आप सब ने हुक्म माना, असलमना हमने हुक्म माना। ठीक होगा जी। अस्लमा, अस्लमू, असलमता, असलम तू, असलम तुम, असलमना, अस्लमा, अस्लमू, असलमता, असलम तू, असलम तुम, असलमना। ठीक हो गया जी। यानी कि उसने हुक्म माना। अब इसका मुदारे कैसे बनेगा, ये हमारा जो टेबल है ये भी उसी तरह से या में आ जाएगा। पहले आप सब अनम्यूट कीजिए खुद को और आंसर कीजिएगा। हल अस्लमा, नाम नाम अस्लमा, क्या उसने हुक्म माना? जी हाँ, उसने हुक्म माना। हल अस्लमू, नाम अस्लम, हल अस्लमता, हल अस्लम तुम, नाम असलमना। इसका माना ये भी आपने याद रखना है, उसने फरमा बरदारी की, संबिशन मतलब। ठीक है। हल अस्लमा लिल्लाही, अब ये जो लिल्लाही में ली है ना, ये लगाएंगे तो हमारा ये कि फेल के साथ जब हमने इस तरह से इसम आगे जोड़ना है तो कोई ना कोई हमें एक हर्फ चाहिए होता है। यानी कि क्या उसने हुक्म माना, अल्लाह का हम अल्लाह के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि के लिए कहें में फिर वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। तो ये जो हरूफे जर है ये थोड़े थोड़े से अपने माना थोड़े थोड़े बदल लेते हैं, उर्दू की मजबूरी है। यानी कि अरबी में वो इसका तर्जुमा यही बनता है कि क्या उसने अल्लाह का हुक्म माना? जी हाँ, उसने अल्लाह का हुक्म माना। अब मैं पूछती हूँ कि हल अस्लम लिल्लाही, नाम अस्लम लिल्लाही, लिल्लाही। ठीक हो गया जी। अरसला का टेबल अभी हमने नहीं किया करके, तो फिर इसको हम देख लेंगे। इसके बाद है युस्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु। उसके बाद हमने किया हासबा युहासिबु। अस्लमा वाला भी जो टेबल है ये भी पेश से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि 3 आप बना लें अपने कॉलम, उसमें आप अस्लमा, अल्लामा और इसी तरह से हासबा, ये 3 टेबल लिखे। इनके जो मुदारे हैं ये पेश के साथ शुरू होते हैं। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु। ठीक हो गया जी। इसमें थोड़ा सा पानी डालें। युस्लिमु, उसने हुक्म माना, युस्लिमूना वो सब हुक्म मानते हैं या मानेंगे। यहाँ पर 2 तर्जमे हुआ करते हैं। तुस्लिमु आप हुक्म मानते हैं, उस्लिमु मैं हुक्म मानता हूँ, तुस्लिमूना आप सब हुक्म मानते हैं, नुस्लिमु हम सब हुक्म मानते हैं। हिया तुस्लिमु वो औरत हुक्म मानती है। अस्लमा, अस्लमु, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, हिया अस्लमत। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया तुस्लिमु। ये हो गए हमारे फेल माजी और मुदारे। ठीक होगा जी। यहाँ पर भी थोड़े से आंसर कर दीजिए मुझे। हल युस्लिमु, नाम
युस्लिमो चलें जी, अब हम चेंज करते हैं। हल तुस्लिमूना नाम मुस्लिम नाम नुस्लिमू। चेंज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे हमने QC1 से शुरू किया था उसी तरह से अरबी ग्रामर की जो बोलचाल है हम उसे कर लेते हैं। अच्छा जी, उस्लिमू, उस्लिमू कहाँ आया था? उस्लिमू मैं सलाम हाँ, मैं इस्लाम लाऊंगा, मैं हुक्म मानता जी हूँ। इस्लाम लाने का मतलब ये होता है ना कि जो इस्लाम में बातें बताई गई हैं उनको मैं मान जाऊं। ठीक हो गया जी, मैं इस्लाम लाता हूँ या लाऊंगा। अस्लमना, मुस्लिम अस्लमना, हम इस्लाम हम इस्लाम लाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा सॉरी, इसका ये अगला, ये हम इस्लाम लाते मुस्लिम। आगे है हल तुस्लिमूना लिल्लाही। तुस्लिमूना का जवाब बस दे दीजिए। मुस्लिमो लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने बनाना है फेल अमर। कैसे बनाना है? वैसे तो अस्लमा पे सिर्फ आपने लाम को जो जबर है नीचे लाएंगे तो वो बन जाएगा असली, और अब मीम को साकिन कर देंगे। जैसे हमारे जो फेले अमर के सीगे होते हैं वो एंड पर मोस्टली जो होते हैं वो सुकून में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको बनाना चाहें तुस्लिमू से, तो हम मुदारे की अलामत को गिरा देंगे और पेश की बना देंगे जज़म, तो ये बन जाएगा। और ये वाला ये आना ही है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्यों नहीं आया? मुझे लगा था कोई सवाल पूछेगा कि अगर हमजा को लेके चलना है तो यहाँ हमजा क्यों नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? मुदारे है, मुदारे में क्यों नहीं आया? हमने क्यों नहीं इसके बाद हमने ये हमजा क्यों नहीं रखा साथ? अलिफ और वाव यहाँ चेक पढ़ा हो नहीं गया। जाएगा ना, ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये पढ़ा नहीं जाएगा। जाएगा। हाँ, ये पढ़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पे वाव इसलिए नहीं लेके आए कि इसकी जरूरत नहीं थी, ये ज्यादा था, ये ज्यादा था ना, इसकी जरूरत नहीं थी, तो युस्लिमु बना लिया। और ये हम सिर्फ सीखने के लिए कह देते ना कि ये बना लिया, ये कर लिया। एक्चुअली ये अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान मजीद में जुबान सिखा दी, हम तो सिर्फ देखते ना कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अरबों के लिए इसमें कोई चेंज नहीं, कोई नई चीज नहीं। उनको पता है कि अगर अस्लमा है तो वो युस्लिमु ही होना है, उसका उन्होंने नहीं ढूंढना कि इसका अब हमजा कहाँ गया। हमारे जहनों में ये वाले सवाल उठते हैं। तो अस्लमा से युस्लिमु। ठीक हो गया जी। अब चूंकि ये ज्यादा था तो इसकी मर्जी है, ये जा भी सकता है। और वैसे भी हमने कहा था हमजा जो है ना ये है लाडला, इसकी मर्जी है। दिल करे तो ये वाओ को अपनी कुर्सी बना ले, अलिफ को बना ले, या को बना ले, इसकी मर्जी। और दिल करे तो ये निकल भी जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से निकल गया कि नहीं थी मर्जी, वो कहता मैं नहीं पेश के बाद आऊंगा, तो वो नहीं आया। ठीक हो गया जी। अब हमारा यहाँ पर बन गया है, यही हमने वापस ला के, क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते ना, सलीम सलीम बन जाता है वो, इसको हम शुरू नहीं कर सकते। तो अब हमने आरजी जेर वगैरह नहीं लगाई, अब हमने ये बनाया है अस्लिम। अब आपने वो वाला जो रूल था ना उसको यहाँ अप्लाई नहीं करना, वो जो हमने मजीद की ही वो जो सॉरी कमजोर में किया या जो हमने सेहतमंद में किया, ये जो मजीद की ही किया इनके अपने रूल है। ठीक हो गया जी। एक टेबल याद रखना है, बाकी सारे टेबल उसी तरह से बना देने हैं। अभी हमने कितने पीछे टेबल बनाए, उन सब के जो फेले अमर के सीखे हैं वो इसी तरह से बनेंगे। जैसे आमिन को ही ले लें, उसका आमाना से आमिन बन जाएगा, अरसला से अरसिल बन जाएगा। तो एक टेबल याद रखना है, अस्लमा का टेबल याद रखते हुए बाकी सारे सीखे उसी पे बना लेने हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने बनाया अस्लिम। इसको एक और तरह से भी याद रख लें, अल्लामा से देखें, अल्लामा से अल्लिम, हासबा से हासिब, अस्लमा से अस्लिम। ठीक हो गया जी। मिलते जुलते हैं इनके, मजीद ही में यही एक खूबी है कि इनके ज्यादातर सीखे आपस में मिलते जुलते ही हैं, जल्दी समझ आ जाती है। तकरीबन 5 टेबल आपने याद करने, उसके साथ आपने देखा था 4500 है कि 4500 1600 इस तरह से है वो तादाद, वो फिगर जो हमें सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब है अस्लिम अस्लिमू, हुक्मान हुक्म मानो। अब आगे है ला तुस्लिम, ये वाली जो पेश है ना ये बड़ी जरूरी पेश है, आपने इसको भूलना नहीं है। हम इसे देखते हैं, इसको थोड़ा सा खोल भी लेते हैं ताकि आप मजीद इसमें कंफ्यूजन से बच सकें। हमने कहा है
युस्लिमू से जो सामने की तरफ हमने इशारा किया वो था तुस्लिमू, ठीक है, तुस्लिमू, अंता तुस्लिमू और हिया तुस्लिमू। मुदारे में ये जो हम उठाते हैं फेले अमर, मुदारे में से हम यही वाला सीगा उठाते हैं। जब हम आ जाते हैं अपने फेले नहीं पे, उसमें वो वाला सीगा पूरा ही होता है, बस उसकी ये जो जज़म ये उड़ा दी जाती है, पेश उड़ाकर जज़म ले आते हैं। तो ये वाला पूरा यहाँ पर जो पेश थी ये उसी तरह से वापस आ जाएगी। ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, ये मैं इसलिए खास करके आपको बता रही हूँ, आपने ये नहीं करना कि अस्लिम अस्लिमू, ला तस्लिम ला तस्लिमू। ये चूंकि हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ी थी चीज, थोड़ा सा याद रखना पड़ा था, और मैं चाहती हूँ आपके लिए आसानी हो कि आप शुरू से इस टेबल को ऐसे याद रखें, याद करें, कि आपको ये दोबारा से याद करनी ना पड़े, बल्कि आपको याद हो चीजें। अस्लिम अस्लिमू, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, थोड़ा सा इसमें ये जो होता है ना राइम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये कि ये बनेगा ऐसे ही, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, बार बार पढ़ेंगे ना तो ये मुंह पे भी चढ़ जाएगा। हुक्म मान हुक्म मानो, मत हुक्म मान मत हुक्म मानो। यहाँ पर हमारा ये फेले अमर कंप्लीट हुआ। ये मुझे पेश वाला समझ नहीं आया, उसमें फेले नहीं की समझ नहीं आई आपको? सिस्टर निकित अनम्यूट कीजिए। जी मैं कह रही थी कि जो हम तस्लीम कहते हैं, ये तस्लीम भी इसी से बना हुआ है, अस्लिम से। अच्छा जी, तस्लीम आपको आज ना इस वाला ये जो हमारा अस्लमा वाला जो है ना लेसन, आपको इसमें अल्लामा याद आ रहा है। अगर हम अल्लामा से करेंगे सल्लामा, अब जो कोई भी सिस्टर आंसर करे जरा इसका, हम बाबे तफईल तालीम की तरह क्या बना लेंगे? तस्लीम 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 तस्लीम। ठीक है सिस्टर निगत, आपको समझ आई? जी, तो ये तस्लीम जो को क्या कहा जाएगा? तस्लीम को क्या कहा जाएगा? ये क्या है ग्रामर की रूह से? इसम मस्दर। मस्दर। आपकी किसी फ्रेंड का नाम तो नहीं है तस्लीम? जी नहीं, मैं वैसे ही उर्दू के लफ्जों पे गौर करती रहती चलो हूँ। ठीक है, मैंने कहा आप उनको बताएं, वो खुश हो जाएंगी कि आज उनको पता चल गया कि सल्लामा वाले टेबल में से जो तस्लीम मस्दर बना था वो उनका नाम है। ठीक हो गया? ये मुझे नहीं वाला समझ नहीं आया, मैं अभी तस्लीम आपको वाला। मैं दोबारा पीछे जाती हूँ उस पर, जो हमारा मुदारे है ना, आपको क्विकली समझ आएगी। मैं इसीलिए तो कह रही ये चीजें हमें याद करनी पड़ी थी, तो आप लोगों को ये मैं इतने अच्छे से समझा दूं कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम भी बड़ी रवानी में पढ़ते थे, अस्लिम से हम तस्लीम ही करते होते थे, क्योंकि ये मुंह पे चढ़ जाता है ना ऐसे ही। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देखें, आपको ये तुस्लिमू नजर आ रहा है? तुस्लिमू, ये जी ठीक है। जी हम जब भी अपना फेल अमर बनाते हैं ना, फेल अमर हम बनाते हैं फेल मुदारे के हाजिर वाले सीगे से। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं अस्लिम तू, यानी कि जो सामने एक हमारे शख्स खड़ा, हम उसको हुक्म दे रहे हैं या हम उससे दरख्वास्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बात हो तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, यानी हम समझते हैं कि ये हमारे सामने वाला जो है इसी ने आंसर करना है ना। हम कहते हैं अस्लिम तू हुक्म मान। जब हमने QC1 शुरू किया था तो हमने कहा था कि इसमें एक अंता छुपा हुआ है। अब जब हमने इसको बनाया फेल अमर, फेल अमर में ये हो गया कि ये जो ता थी ये गिर गई ना, उसमें तो ये इतना ही यूज होगा। ठीक है, अब ये जो लिम रहा था, ये अब इसको साकिन पढ़ नहीं सकते, तो ये वाला हमजा आया वापस। अब वो आरजी जेर वाला जो हम तीसरे लेटर को देखते हैं वो नहीं काम आया, अब ये हमारे काम आ गया ये जो हमजा। क्यों? क्योंकि इसमें हमजा ही ज्यादा था और इस हमजा ने ही फिट होना है, अब कोई और हमजा इसकी जगह ले नहीं सकता। अब जेर वाला जो पेश वाला ये इसके काम आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया? यहाँ से हमारा फेल अमर पूरा हो गया अस्लिम। लेकिन जब हमने बनाना है नहीं का सीगा, तो मैं अब रेस करके अब आपको नहीं का अच्छे से समझाती हूँ। अब हमने इसको बनाना है
मत हुक्ममान, हम इसको लगाएंगे ला तुस्लिम, इसको हम बना देंगे जज़म। अब समझ आ गई आपको? जी आ गई है। ला तुस्लिमू, ये नून कहाँ चला जाता है, इसको हम इंशाल्लाह जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। ये बन गया है ला तुस्लिमू। अब ये एक अलिफ है, ये बहुत जरूरी है लगानी, ठीक है। ला तुस्लिमू, ताकि पता चले ये जमा है, ताकि ये यदऊ वाले के साथ चेंज हो जाए ना दोनों। जब यदऊ था तो वाव उसमें भी एंड पे था, लेकिन यहाँ पर ये वाहिद है और ये जमा है, और ये जमा की निशानी हम यहाँ भी देखते हैं, फेल अमर में भी देखते हैं, ठीक है। अब सब लोग इस बात को याद रखिएगा, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू। अब और मजीद आसान हो गया ना, ये हमारा फेले नहीं है, फेले नहीं इस तरह से बनता है, ऐसे ये बिल्ड हुआ है, ये वाहिद है और ये है जमा, ठीक हो गया। ला तुस्लिम ला तुस्लिम ला तुस्लिमू, और हम कैसे इसका आंसर करते हैं, ला तुस्लिम हम जवाब देते हैं ला उस्लिमू, मत हुक्म मान, मैं नहीं हुक्म मानूंगा या मानता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं ला तुस्लिमू ला नुस्लिमू, फिर हम फिर मुदारे से जवाब देते हैं। ये भी आज पहला दिन है ना, ये आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आप मुझे सिखाने लग जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताया करेंगे कि यहाँ पर तो ये आना चाहिए था, आपने ये बोल दिया है। अब इसके बाद हमने करना है बिल्कुल उसी तरह से, हमने कहा अल्लिमा से मुअल्लिम मुअल्लम, हासबा से मुहासिब और मुहासब। अब आप जरा कोशिश कीजिए, एक आपके सामने है अस्लमा से मुस्लिम, तो दूसरा क्या बन जाएगा, मुस्लिम। मुस्लिम। और एक सिस्टर का हैंड रेज हुआ था, सिस्टर सानिया। मुस्लिम तो मैं एंड ऑफ द क्लास पूछूंगी, मैंने लिख लिया है। इस्लाम। प्लीज सिस्टर, कुछ कहना था आपको? मिस सवाल था वो मैंने नोट कर लिया, मैं क्लास के लास्ट में पूछ लूंगी, आप अभी कंटिन्यू करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर। अच्छा जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मुस्लिम किसको कहते हैं, मुस्लिम हुक्म मानने वाला, मुस्लिम अल्लाह का हुक्म और मानने हम वाला। कौन है? आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता चला, हम ये जो मुस्लिम। कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुस्लिम कि मैं हुक्म मानने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में जो हम पर फर्ज किए, जो हमें हुक्म दिए हैं। मैं कह रही हूँ कि अब खैर मैं तो हूँ लेडी हूँ, तो मैं मुस्लिमा कहूंगी ना कि मैं मुस्लिमा हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मुस्लिम के मैं मुसलमान हूँ, मैं हुक्म मानने वाला हूँ, ठीक हो गया जी। और मुस्लिम का क्या माना होगा, जिसका हुक्म माना जाए। जिसका हुक्म माना जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम आगे देख भी लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने देखा कि अस्लमा से, आज हम उस तरह से नहीं करेंगे कि अलिफ गिरा दें और मुंह पे मुंह लगाएं। अब हमने ये पक्का सच्चा याद कर लेना है कि ये जो मजीद फीही में बनने ही ऐसे हैं, ठीक हो गया। जब मुस्लिम से मुस्लिम, और इसका फिर जो हम मस्तर शुरू में पढ़ के आगे हैं इस्लाम, ठीक हो गया जी। यहाँ पर रंग बिरंगा सा करके बताया गया है कि ये देखें, ये हमजा के नीचे जेर आ गई है और एक ये जो अलिफ ज़्यादा आ गया। बस हम इसको ऐसे याद रखेंगे, अस्लमा से इस्लाम, अफ़आला से इफ़आल, हमारा बाब बन गया इफ़आल, और हमारा जो टेबल है वो है अस्लमा। जी सिस्टर नाहिद। जी मैंने आपसे ये पूछना था कि मुसलमान वो कहाँ पे आएगा? मुसलमान, मुसलमान पे भी आते हैं, अभी पूरा टेबल देखते हैं, मुसलमान पे भी आते हैं, मजा आएगा आपको उसको सुन के भी। मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन और इस्लामुन। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप यहाँ पर आ जाए, आप कहते हैं जमा बनाइए, हमारे पास है मुस्लिमू, क्या जमा बनेगी, मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमून और मुस्लिमीन, सॉरी मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। इसको क्या थी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, मुसलमान कहीं नजर ही नहीं आया, हम मुसलमान मुसलमान करते फिरते हैं। ये आ गया है जी तस्निया पर,
तस्निया किसे कहते हैं? दो। दो। अरबी जुबान में 3 चीजें होती हैं, एक होता है वाहिद, एक होता है तस्निया, एक जमा। होती है जमा। और मैंने जमा का साइन बना दिया, चले, एक होती है जमा। अब हम कहेंगे मुस्लिमू, मुस्लिमुन। अब यहाँ पर आएगा अब मुसलमान नहीं होता, ठीक है, मुस्लिमान होता है, मुस्लिमान। ये कहते हैं 2 मुसलमानों को, हम एक को ही मुसलमान कह देते हैं ना, ठीक है। और इसका जो दूसरा होगा ना, ये तो वो होगा जो हमने मुस्लिमुन से बनाया, और जो हम मुस्लिमिन और मुस्लिमन से बनाएंगे, ये बनेगा मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। अच्छा जी, मेरी आवाज रुक तो नहीं गई? आ रही है। ब्रेक हो रही थी आपकी, अब चले ठीक ठीक हो है। गई है। अब समझ आ गई आपको मुसलमान कहाँ से आया? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने क्वेश्चन किया था, इसका मतलब हम लोग उर्दू में गलत कहते हैं जमा मुसलमान, हम अपने आप को उर्दू की अपनी मजबूरियां, हम एक को ही कहते हैं कि ये मुसलमान है ना, हम असल में कहते थे ये 2 जो इकट्ठे करके कहते थे, हम कहते हैं मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं। अच्छा जी, मुझे ड्रामा याद आ गया। अच्छा जी, मुस्लिम की अगर हम बनाएंगे मुअन्नस क्या बन जाएगी? मुस्लिमा। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन भी कर सकते हैं, मुस्लिमातुन। तुन भी कर सकते हैं, तिन भी और तन भी, ठीक है, मुस्लिमातुन। और इसकी अब अगर हम जमा बनाएंगे, मुस्लिमात। मुस्लिमात। मुस्लिमातुन भी कर सकते हैं और मुस्लिमातिन कर सकते हैं, तुन ये तन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने सीखा है QC1 में कि हम इसको तन नहीं कर सकते। मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन दोनों सूरतों में ये जो 2 शेर वाली आ जाएगी। अच्छा जी, इतना काफी है, इसकी तो नहीं आपको चाहिए जो तस्निया? नहीं, ठीक है, चले लिख लेते हैं, उसमें उसी ता को बढ़ा लिया बता जाता दें। है। ये मुस्लिमा होगा ना, मुस्लिमा। हाँ, मुस्लिमातानी, मुस्लिमैतैनी, ठीक है। ये थोड़े से पढ़ने में भी मुश्किल हो जाती है, इनकी जरूरत नहीं है हमें। ये जो है ना तस्निया वाले, ये हम इंशाल्लाह अगले कोर्स में करेंगे। ये सिर्फ अभी सिस्टर के क्वेश्चन पे मैंने बताया, अभी आपने इसको इसमें खपना नहीं है, अपने आप को आपने परेशान नहीं करना, ठीक हो गया जी। अभी हमें चाहिए मुस्लिमुन, मुस्लामुन और इस्लामुन। अब मुस्लाम, ये इसकी भी इसी तरह से मुस्लामूना, मुस्लामिन, ये भी इसी तरह से हम इनके बना सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है आपसे कि आप इनकी साथ साथ बनाएं, तो अभी हम सिर्फ इस टेबल को अच्छी तरह से याद करते हैं, ताकि इसके ये जो वाहिद वाहिद वाले सीगे हैं, मैं भी मुस्लिम की तरह से फतहा लगा दी। अच्छा, ये जो सीगे हैं ना, ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। अब हम पूरा टेबल एक दफा देखते हैं, और आप हैंड रेस कर लीजिए जो जो इस पूरे टेबल को करना चाहता है। पहले मुझे आंसर कीजिए, हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमून, नाम बिल्कुल ना डालना। ये हाजरा वाले टेबल हमने किया नहीं ना, ये वाले क्वेश्चन हम रहने देते हैं, इनको नहीं करते। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, पूरा टेबल दोहराते हैं। यहाँ पर अच्छा जी, अननेसेसरी जो माइक ऑन हुए में उनको जरा बंद कीजिए, ताकि जो सिस्टर पूरा टेबल करेंगी जी। सिस्टर्स के हैंड रेज हुए। सिस्टर फेरोजा जी, सिस्टर आप माजी कीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ लिखना चाहती हूँ। असलमता, असलमतु, असलमतुम, असलमना, असलमत, या असलमत। अच्छा जी, मैं जरा यहाँ पे लिखती हूँ, फिर आप दोबारा कीजिएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की थी वो जरा थोड़ा सा ज्यादा ही, ये भी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैं दोबारा मैं मुजारे का भी करूँ? कर लीजिए, कर लीजिए आप। उतनी देर, जितनी देर मैं लिखती हूँ आप इशारे खुद कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इशारे करूंगी। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, तुस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया तुस्लिमु। ठीक हो गया, अस्लिम,
ला तुस्लिम, ला तुस्लिमु, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लामुन और इस्लामुन। अच्छा जी सिस्टर आसिया इकबाल आप कीजिए माजी और इसको अपने तर्जुमे के साथ करना, सिर्फ माजी कीजिएगा। जी अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमु उन सब ने हुक्म माना, अस्लम था आपने हुक्म माना, अस्लम तू मैंने हुक्म माना, अस्लम तुम आप सब ने हुक्म माना, अस्लमना हम सब ने हुक्म माना, अस्लम अस्लमत उस औरत ने हुक्म माना। जी सिस्टर कोमल आप मुदारे आ जाइए और इसी तरह से तर्जुमे के साथ कीजिएगा। सिस्टर आसिया आप हैंड अपना डाउन कर ले, जो पढ़ता जाए वो अपने हाथ नीचे कर ले। युस्लिमु वो हुक्म मानता है, युस्लिमूना वो सब हुक्म मानते हैं, तुस्लिमु आप हुक्म मानते हैं, उस्लिमु मैं हुक्म मानता हूँ, तुस्लिमूना आप हुक्म मानते हैं, आप सब हुक्म मानते हैं, नुस्लिमु हम सब हुक्म मानते हैं, हिया तुस्लिमु वो औरत हुक्म मानती है। हुक्म मानती है, जज़ाकिल्लाह खैरा। जी सिस्टर समिया पहले अमर। अस्लिम हुक्म मान, अस्लिमु हुक्म मानो, ला तुस्लिम मत हुक्म मान, ला तुस्लिमु मत हुक्म मानो, मुस्लिमुन हुक्म मानने वाला, मुस्लमुन जिसका हुक्म माना जाए, इस्लामुन हुक्म मानना। हुक्म मानना। जी सिस्टर तस्कीन अब आप तर्जुमा के बगैर कीजिएगा, मुदारे और माजी दोनों आप कर लीजिए। अस्लमा, अस्लमु, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, अस्लमत, युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया तुस्लिमु। अच्छा जी अब सिस्टर आईफोन के नाम से आप इसका पहले अमर और इसकी जो अस्मा की चाबियां कर लीजिए। सिस्टर आईफोन के नाम से हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। चले सिस्टर समीरा आप कर लें। रिफत है वो। सिस्टर रिफत चले ऑन कर लिया उन्होंने भी। चले सिस्टर रिफत कीजिएगा। अस्लिम, अस्लिम हुक्म मान, अस्लिमु हुक्म मानो, ला तुस्लिम मत हुक्म मान, ला तुस्लिमु मत हुक्म मानो, मुस्लिमुन हुक्म मानने वाला, मुस्लामुन जिसका हुक्म माना जाए, इस्लामुन हुक्म मानना। ठीक है अब सिस्टर समीरा आप कीजिएगा फेल माजी और सिस्टर एक और है सिस्टर कमर नहीं आप मुदारे कीजिएगा। तर्जुमे के साथ कर लें। अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमु उन सब ने हुक्म माना, अस्लमता आपने हुक्म माना, अस्लमतु मैंने हुक्म माना, अस्लमतुम आप सब ने हुक्म माना, अस्लमना हम सब ने हुक्म माना, अस्लमत उस औरत ने हुक्म माना। जी सिस्टर कमर। युस्लिमु वो हुक्म मानता है, युस्लिमूना वो सब हुक्म मानते हैं, तुस्लिमु आप हुक्म मानते हो, उस्लिमु मैं हुक्म मानता हूँ, तुस्लिमूना आप सब हुक्म मानते हैं, युस्लिमु हम सब हुक्म मानते हैं, या तुस्लिमु वो औरत हुक्म मानती है। वो औरत हुक्म मानती है। अब आपने जब कुरान पाक पढ़ना है उसमें से इसके सीखों को आपने ढूंढना है, जो जो आपको नजर आए फिर आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक होगा जी। एक दफा पूरा टेबल में आपके लिए पढ़ती हूँ। अस्लमा, अस्लमु, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, अस्लमत, युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हिया तुस्लिमु, अस्लिम, अस्लिमु, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमु, मुस्लिमुन, मुस्लामुन, इस्लामुन। ठीक हो गया जी। ये हमारा पूरा मुकम्मल टेबल है। अपनी माजी की चाबी से एक खजाना मिला, एक खजाना हमें मुदारे से मिला, एक खजाना ढूंढा हमने पहले अमर से, और ये 3 खजाने पूरे पूरे कैसे कि इस पे हम तनवीन भी लगा सकते हैं, अल भी लगा सकते हैं, जमा बना सकते हैं, तस्निया बना सकते हैं, मुअन्नस बना सकते हैं, मुअन्नस को फिर से तनवीन अल जमा और ये सब कुछ बना सकते हैं, तस्निया। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास बेश बहा सीखे इकट्ठे हो जाते हैं अस्मा के। अब हम देख लेते हैं। अब हमने अगली जो चीज करनी है अपनी वर्कबुक में से कुछ पेज एक दो को जो सॉरी एक दो एक ही करेंगे। अच्छा जी 6 चाबियां देख लीजिए। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लम, इस्लाम। तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो फर्क कर लेंगे। मुस्लिमुन, मुस्लामुन, इस्लामुन पहचानना आसान हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब जो हम कर चुके हैं
अल्लमा युअल्लिमु मुअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम हासबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासब मुहासबा अस्लमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। इन तीनों में कौन सी चीज कॉमन है? तीनों के तीनों में आप देखिए पेश के साथ हमारा मुदारी शुरू हुआ और इन सब के अल्लिम हासिब अस्लिम एक जैसे हम फेल अमर बन गए, मुअल्लिम मुअल्लम मुहासिब मुहासब मुस्लिम मुस्लिम। और आपने इनके अबवाब के नाम भी याद रखने, तफ़ईल मफ़अला और इफ़आल। ठीक हो गया जी, ये चाबियां हम बना लेंगे उससे। अच्छा जी, अब कोशिश कीजिएगा जरा। पहले हम देखेंगे कि ये फेल कौन सा यूज हुआ है। ये है तुम सब हुक्म मानो। पहले सिर्फ इतना कर लो, अमर जमा। अमर जमा। तो क्या लिखेंगे हम? अस्लमु। अस्लमु। अस्लमु के अस्लिमु? अस्लिमु। 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 अच्छा जी, अब ये क्या लिखा हुआ है? जहान्नो का रब, रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन। अब हमने इस का तर्जुमा ढूंढना है। उसके लिए हम यहाँ पे हिंट पे आ जाते हैं। ये हमें एक हिंट बताया गया कि ली यूज कर लें, अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन। ठीक हो गया? अस्लिमु तुम सब हुक्म मानो, ली का वैसे हमने तर्जुमा पढ़ा हुआ है के लिए, लेकिन साथ ही हमने पढ़ा था कि हरूफ जो है ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने माना बदलते रहते हैं। ठीक हो गया जी? अस्लिमु ली रब्बिल आलमीन। अब तर्जुमा कीजिएगा, हुआ का तर्जुमा कीजिएगा। और हम सब लहू उसके लिए या फिर उसके, ठीक है, या उसी का भी कर सकते हैं, उसका उसके लिए, दोनों बातें ठीक है। उसका हुक्म मानने वाले हैं। अब रवान तर्जुमा क्या हो गया? और हम सब उसका हुक्म मानने वाले हैं। ये उस कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। हल अस्लम तुम, और ये हाँ में जवाब देना है। नस्लमना। थोड़ा सा चेंज कर ली, माजी है। माजी है। अस्लमना लिल्लाह। अस्लमना लिल्लाही। ठीक हो गया जी? समझ आ गई सबको? रेज कर दिया जाए। ये लास्ट वाले का प्लीज बता दीजिए ना। ये नाम, ये कह रही है सिस्टर? जी लास्ट वाला, हल अस्लमतु लिल्लाह। नाम नहनु मुस्लिमून, ये वाला आप कह रही है? जी अस्लमना लिल्लाही। जी हाँ, हम सब। पूछा गया है हल अस्लम तुम, क्या आप सब मानने वाले हो हुक्म किसका? लिल्लाही, अल्लाह का। हम कहते हैं ना, हम नहनु अस्लमना लिल्लाही। जी हाँ, हम हुक्म मानने वाले हैं अल्लाह का। ठीक हो गया जी? अस्लिमु लिरब्बिल आलमीन, और हम सब उसी का हुक्म मानने वाले हैं। मानने वाले का क्यों किया हमने तर्जुमा? क्योंकि फाइल है ना, ये है मुस्लिमुन। तो मुस्लिमुन हुक्म मानने वाला, हुक्म मानने वाला। और ये जो तनवीन ने बना दिया इसको मुस्लिमूना। ठीक हो गया जी? अब हम देख लेते हैं हमारा अगला टेबल क्या है। अच्छा जी, ये है अरसला। कोई कोशिश करेगा अरसला की? सिस्टर मैं करूं? जी कीजिएगा। भेजो जी। अस्लमा का टेबल सामने करूं? जी। अस्लमा का टेबल सामने रखते हैं, फिर आसान हो जाएगा। चलिए जी। अरसला अरसलाम अरसला अरसलू अरसला अरसलू अरसलता। अच्छा रुकिए, एक मिनट सिर्फ रुकिए।
अरसला के बाद अरसालू नहीं कहना, ठीक है, वो फिर एक और हमजा आ जाएगा बीच में। अरसला अरसलू, ठीक हो गया। ओके, अरसला अरसलू, अरसलता अरसलतु, अरसलतुम अरसलना। या अरसलत अरसलत अरसलत, ठीक हो अरसलत। गया जी। युरसिलु युरसिलु युरसिलूना, तुरसिलु उरसिलु, तुरसिलूना, लुरसिलु या तुरसिलु। अरसिल 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 अरसिलु, ला ला तुरसिलु, and मुरसिलुन, मुरसालुन, इरसालुन। मुरसलुन और इरसालुन, अल्हम्दुलिल्लाह। मुरसालुन और इरसालुन। हाँ, मुरसाल कहेंगी ना, मुरसाल तो एक अलिफ ज्यादा आ जाएगी। आपका नाम क्या है? कौन सी सिस्टर नौरीन कर रही थी। तो अगर आप एक या अपने नाम में और लगाते तो आप नौरीन बन जाएंगी, ठीक है। तो अपने हमने इजाफे नहीं करने, जो जितना लिखा हम उतना ही करेंगे। जैसे अरसला अरसलू, अरसलता अरसलतु, अरसलतुम अरसलना और अरसलत। युरसिलु युरसिलूना, तुरसिलु उरसिलु, तुरसिलूना नुरसिलु या तुरसिलु। अरसिल अरसिलु, ला तुरसिलु, मुरसिलुन मुरसलुन इरसालुन। ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ जी। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ। ये हमारे रिवीजन की क्लास में बड़े अच्छे से हमें बताए थे अफसा ने। आप सब जरूर रिवीजन की क्लास लिया करें, बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है आपके क्विज की। ठीक हो गया जी। चलिए कोई क्वेश्चन? मेरे कोई क्वेश्चन था ये कि ये जो अभी हम लोग ने कुछ पढ़ लिए, मजीद फिर कुछ पढ़ेंगे, तो ये हर चीज पे अप्लाई होते हैं, हर फेल के ऊपर इस वाले बाब के अंदर से एक कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। अच्छा, जैसे आपका कहने का मतलब है कि जैसे हमने आज अल्लामा से सल्लामा भी बना लिया, इस्लाम भी बना लिया, इस तरह जी से जी आप कह रही हैं? जी जी ठीक हो गया। सारे नहीं होते, काफी सारे होते भी हैं कि जैसे आप देख लीजिए कि जैसे सामिया तो हो सकता है समा भी हो और अस्मा भी हो, इसी तरह से सामा भी हो, ये हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर टेबल को हमने उस पर उतारना ही उतारना है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा नसारा, तो ये जरूरी नहीं हम नसरा भी करेंगे और अंसारा भी करेंगे, ये जरूरी नहीं है। जितने जो जो आते जाएंगे ना कुरान मजीद में, बनाने को हम बना सकते हैं। असल में तो ये बनती है फा आइन लाम से ना, जैसे हम कहें फअला फअलु फअलता फअलतु फअलतुम, ये पढ़ना और ये जो उसका फिर उतना फायदा नहीं है जितना हम अपने कुरान के सीखों को यूज करके उनको आप टेबल पूरा पूरा पढ़ ले। अब हासाबा हमने किया तो बहुत जगहों पर आपको हासाबा या इसमें से कोई भी सीगा आप निकाल लें कुरान मजीद में नजर आ जाएगा। आमाना का आपने देखा बहुत बड़ा सा बताया, इसका मतलब है कि आमाना बेतहाशा यूज हुआ है कुरान मजीद में। तो हम अपने इस कोर्स में क्या करते हैं, जो कुरान मजीद में यूज हुआ वही हमारा निसाब है, वही हमारा कोर्स है, हमने उसी को ही पढ़ना है। जैसे जैसे हम आयात में, जैसे आज फद्दला आ गया, उसके बारे में हमें समझ आ गई। हमने पिछली आयात में कज़्ज़ाबा भी पढ़ा था, तो मैंने आपको एक दिन कहा था कि नोट करते जाएं। जिस दिन हम अपनी मिड की रिवीजन करेंगे उस दिन हम उन आयात को देखते देखते वो सारा हाईलाइट कर लेंगे कि अच्छा इसके साथ ये टेबल है, ये टेबल है, बहुत आसानी से फिर हमें समझ आती जाएगी। ठीक हो गया जी। अभी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं बस क्विकली इसको कर कंप्लीट तक, क्योंकि ना ये जो नमाज का टाइम जा रहा है।